everyone, welcome back to our YouTube channel Vibrant Studies. Today we will do practice set based on figure of speech. It will be at TGT PGT level, and as we know that there are so many teaching exams that are coming, for example DSSB, EMRS, etc. So it will enhance your knowledge according to exam pattern and syllabus. Let's start the video. Here is the first question. One second. Yes, here is the first question. What is the figure of speech in which a statement is made emphatic by oval statement? आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो स्टेटमेंट इज मेड, जिसमें स्टेटमेंट मेड किए जाते हैं, ओवर स्टेटमेंट किया जाता है उसको. Options are: first one is hyperbole, second is onomatopoeia and apostrophe, and another is oxymoron. So as you know that there is only one figure of speech that uses extreme exaggeration to make a point or show emphasis. It is a type of figurative language. It is a trick of exaggerating a situation, action or feeling by using extreme language to anticipate the image created in the reader's mind. So it will be hyperbole. Correct answer is hyperbole. हाइपरबोल में हम क्या देखते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ओवर स्टेट किया जाता है, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है. एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोल? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सग्रेशन टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, टू मेक अ पॉइंट और टू evoke humor. Got it? Now let's see the example of hyperbole. For example, I am so hungry I could eat a horse. Another is that plane ride took forever. This is the best book ever written. I love you to the moon and back. These are the examples of hyperbole. Now look at the another question. Another is which of the following sentence has the figure of speech called onomatopoeia? अब देखिए what is onomatopoeia, figure of speech कौन सा है, how to understand, how to find out. So first of all we should know the definition of onomatopoeia. Okay, yes. What is the definition of onomatopoeia? Onomatopoeia is a figure of speech that uses words to describe the sounds. क्या करते हैं? साउंड को डिस्क्राइब करते हैं. Made by all living things including people, animals, birds and all inanimate objects also. आप साइड में यहाँ पे नोट कर लीजिए. ओनोमोटोपोइया मीन्स साउंड रिलेटेड वर्ड्स. सो डिस्क्राइबिंग साउंड वर्ड्स. डिस्क्राइबिंग साउंड. अब जहाँ भी सेंटेंस में आपको साउंड से रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे देन यू विल easily click on onomatopoeia. Okay. Now let's see the examples or statements. I heard the water lapping on the crag. Another is revenge is a kind of wild justice. देखिए यहाँ पे सेकेंड वन में रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस. रिवेंज को कंपेयर कर रहे हैं किससे? वाइल्ड जस्टिस से. तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? मेटाफर का. बिकॉज यहाँ पे जो कंपेयरिंग वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल लाइक, शो एंड एज नहीं यूज़ किया जा रहा है. सो इट विल बी मेटाफर. एंड थर्ड वन इज ही इज द वाइजेस्ट फूल इन हिज ग्रुप. सो अनदर इज हाइपरबोल एंड अनदर इज जो थर्ड वन है उसमें आप देखेंगे कि वाइजेस्ट और फूल टू अपोजिट वर्ड है, एक साथ यूज़ किया गया है. देन इट विल बी ऑक्सीमोरन. एंड लास्ट वन इज हैमलेट मीन्स हम इसमें हैमलेट को एड्रेस कर रहे हैं. सो इट विल बी एपोस्ट्रोफी.
So the correct answer will be first one. I heard the water lapping. अब lapping क्या है? Lapping is the sound of water. So it will be onomatopoeia. Sound related word, water lapping. Now look at the another one. Yes. Third one is, which figure of speech has been used in the following line? जो आपको लाइन दी है इसमें बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है. ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. अब देखिए, वर्ड को एड्रेस कर रहे हैं, लाइफ को एड्रेस कर रहे हैं और टाइम को एड्रेस कर रहे हैं. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले. यस, these are the options. First one hyperbole, second is oxymoron, third is apostrophe and fourth is personification. अब हाइपरबोल में क्या करते हैं कि ओवर स्टेटमेंट करते हैं. ऑक्सीमोरन, टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर. और एपोस्ट्रॉफी में एड्रेस करते हैं. पर्सोनिफिकेशन में क्या करते हैं? पर्सोनिफाइड करते हैं इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग थिंग्स को. सो द करेक्ट आंसर विल बी एपोस्ट्रॉफी, क्योंकि इसमें हम जो आपको लाइन दी गई है उसमें क्या कर रहे हैं? एड्रेस कर रहे हैं. ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम. सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, एपोस्ट्रॉफी. नाउ लुक एट द अनदर क्वेश्चन. फोर्थ इज, फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड. अब देखिए, फिगर ऑफ स्पीच का अनदर नेम क्या है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कुछ आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, सेंटेंस दे रहे हैं, आपसे फिगर ऑफ स्पीच की बजाय दूसरा वर्ड पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर दैट वर्ड, तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. सो द करेक्ट आंसर विल बी rhetoric. Okay, correct answer will be rhetoric. Rhetoric is the another name used for figure of speech. Now look at the another one. Simile, metaphor, personification, apostrophe are the figure of speech which are based on. ये these figure of speech are based on, किस पे based हैं, किस पे आधारित है? मीन्स what is the common thing among simile, metaphor, personification and apostrophe also. Options are, first one is contrast, second is association, third is resemblance एंड फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन. अब देखिए, सिमली और मेटाफर में क्या है? कुछ कॉमन थिंग है. मीन्स कंपैरिजन दोनों में करते हैं, बट कंपेयरिंग वर्ड सिमली में यूज़ करते हैं, मेटाफर में यूज़ नहीं करते हैं. एंड व्हाट इज़ द अनदर डिफरेंस और सिमिलैरिटी बिटवीन पर्सोनिफिकेशन एंड एपोस्ट्रॉफी. ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में क्या है कि हम पर्सोनिफाइड करते हैं किसको? किसी नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को. एंड एपोस्ट्रॉफी में क्या करते हैं कि हम एड्रेस करते हैं, उसमें भी नॉन लिविंग और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी रिसेम्बलेंस. थर्ड वन इज ओके. नाउ लुक एट द अनदर आंसर, सॉरी अनदर क्वेश्चन, सिक्स्थ वन. ओके, sixth question is, antithesis and epigram are such figures as are based on. अब एंटीथेसिस और एपिग्राम में जो फिगर ऑफ स्पीच हैं किस पे बेस्ड हैं? ऑप्शंस आर कंट्रास्ट, रिसेम्बलेंस, एसोसिएशन और कंस्ट्रक्शन. सो द करेक्ट आंसर will be first one, contrast. Because एंटीथेसिस एंड एपिग्राम्स में हमें क्या है? कॉन्ट्रेरी मिलता है, अपोजिट्स देखने को मिलते हैं सेट टुगेदर. ठीक है, किसी सेंटेंस में हमारे टू अपोजिट्स यूज होते हैं, एक साथ उनको प्रयोग करते हैं. दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज नोन एज एंटीथेसिस एंड देयर आर लिटिल सिमिलैरिटी बिटवीन antithesis and epigram also on the basis of contrast. Look at the another one, figures based on association. कौन से फिगर्स हैं, कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच है जो बेस्ड है किस पे? एसोसिएशन पे बेस्ड है. एग्जाम्पल्स आर, सॉरी ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन सिमली एंड मेटाफर, मेटोनमी एंड सिंडोक्चे, क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स, एंड लास्ट वन एंटीथेसिस एंड एपिग्राम.
देखिए जैसे कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि सिम्बली और मेटाफर किस बेस्ड होते हैं, किस पे, रिसेम्बलेंस से। अभी आपने ऊपर देखा एंटीथीसिस एंड एपिग्राम बेस्ड है कंट्रास्ट से। तो ये आपके 2 ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। नाउ लुक एट द सेकंड वन एंड थर्ड वन, मेटोनमी एंड सिंडोक्चे एंड क्लाइमेक्स एंड एंटीथेसिस। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं एसोसिएशन का मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, एसोसिएशन मीन्स संगठन, एक प्रकार का अलंकार। इसमें आप किसी चीज़ के एक हिस्से का उपयोग पूरी चीज़ के लिए करते हैं। मीन्स आप किसी पार्ट का यूज़ करते हैं शो करने के लिए होल। पार्ट रिप्रेजेंट्स होल एंड होल रिप्रेजेंट्स एज पार्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, मेटोनमी एंड सिंगडोचे. Now look at the another one. Climax and anticlimax are the figures of speech depending on. Climax और anticlimax figure of speech है, किस पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शंस आर कंट्रास्ट, रिसेम्बलेंस, एसोसिएशन. अब देखिए अबव 3 तो आपने पहले देख लिया है कि कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं जो कंट्रास्ट पे बेस्ड है, रिसेम्बलेंस पे बेस्ड है, एसोसिएशन पे बेस्ड है. अब बात करते हैं किसकी, कंस्ट्रक्शन की. क्योंकि क्लाइमेक्स में क्या होता है कि आइडियाज़ को हम पुट करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इम्पोर्टेंस. और एंटी क्लाइमेक्स में क्या है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग और डिसेंडिंग किससे रिलेट है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन से है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी. क्लाइमेक्स एंड एंटी क्लाइमेक्स आर द फिगर ऑफ स्पीच डिपेंडिंग ऑन कंस्ट्रक्शन. नाउ लुक एट द अनदर वन. Yes, 9th one is, I see a lily on thy brow, pale with anguish. पर्टिकुलर आपको लाइन्स दी हैं टू. द फिगर ऑफ स्पीच इज, आपको उससे पूछा गया है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो पेल विद एंग्विश. ठीक है, हेयर द स्पीकर कंटिन्यूज टू एड्रेस दिस sick, depressed knight at arms, suggesting that the knight face is pale like a lily. नाइट का जो फेस है वो कैसा पेल हो गया है, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, लिली से. सो हेयर द पेलनेस इज कंपेयर टू अ वाइट लिली, सो इट इज मेटाफर. कंपैरिजन है बट कंपेयरिंग वर्ड्स नहीं यूज है हमारे, सो वी विल गो विद मेटाफर. नाउ लुक एट द अनदर वन. विच फिगर इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल. अब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जो हाइपरबोल के अपोजिट है. हाइपरबोल में क्या करते हैं हम लोग कि ओवल स्टेटमेंट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, लिटोटस. लिटोटस इज फिगर दैट इज अपोजिट ऑफ हाइपरबोल. अनदर इज ही दैट लूज्ड हिज लाइफ शैल सेव इट. फिगर ऑफ स्पीचेस, पर्टिकुलर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आपको बताया गया है. ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज पैराडॉक्स, अनदर इज मेटाफर, देन पन और लिटोटस. सो द करेक्ट आंसर विल बी पैराडॉक्स. व्हाट इज पैराडॉक्स? A paradox is opposed to common sense and yet is perhaps true. Paradox क्या है? Paradox opposed करता है to common sense and yet is perhaps true. So the correct answer will be paradox. Now look at the another one. 12th question. Which figure is also known as rhetorical? कौन सा rhetorical question, कौन सा फिगर है जो rhetorical questions के नाम से भी जाना जाता है. ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज लिटोटस, सेकंड इंटेरोगेटिव, थर्ड इज सिंगडोचे एंड फोर्थ वन इज पैराडॉक्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी, अब देखिए rhetorical क्वेश्चन है सो वी कैन इजली गो विद इंटेरोगेशन. Correct answer will be interrogation. Interrogation is also known as rhetorical question. Keep it in mind. Now let's go with another one.
13th question, climax is a Greek word which signifies. Climax क्या signify करता है, क्या define करता है, and it is a Greek word. It has been extracted from Greek language. So the options are a ladder, a system, none of these, and a pattern. What is climax? Climax signifies ladder. ठीक है, क्लाइमेक्स क्या सिग्निफाई करता है, लैडर को. अब देखिए क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया है कि क्लाइमेक्स क्या है. क्लाइमेक्स में आइडियाज असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, मीन्स स्मॉल टू बिग, एंड इन एंटी क्लाइमेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस. बोथ आर अपोजिट्स टू ईच अदर. नाउ लुक एट द अनदर वन. 14th question is the other name of एंटी क्लाइमेक्स. एंटी क्लाइमेक्स का अनदर नेम, दूसरा नेम क्या है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन बैथोस, पन, क्लाइमेक्स एंड एंटीथेसिस. ठीक है, क्लाइमेक्स तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका अपोजिट है. क्लाइमेक्स इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच, पन इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच, एंटीथेसिस इज ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमेक्स इज बैथोस. Now look at the 15th. The tea is ice cold. अब टी क्या है? ice cold. ice cold. Figure of speech is. अब देखिए टी का नेचर कैसा होता है, हॉट, लेकिन वो कैसी है, आइस कोल्ड. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीमोरन, बिकॉज देयर आर टू अपोजिट्स सेट टुगेदर. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीमोरन. पन नहीं होगा आपका, हाइपरबोल नहीं है, सिमली नहीं है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑक्सीमोरन. नाउ लुक एट द अनदर वन. 16th. In which figure vowel sounds are repeated? Underline it. Vowel sounds repeat होते हैं. Which figure of speech is where vowel sounds are repeated? So the correct answer will be assonance. In assonance, there are vowel sounds that are repeated. वोवल साउंड्स का रिपीटेशन होता है वोवल्स में. अब देखिए आगे हम जानेंगे कि किसमें हमारा वर्ड्स रिपीट होते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी एजोनेंस. नाउ लुक एट द अनदर वन. यस, अब देखिए आपको यहाँ पे न्यू वर्ड मिला है, टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज. अब आपको बताना है कि उसका अनदर नेम क्या है. तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होता क्या है, व्हाट इट रेफर्स. ठीक है, टॉटोलॉजी मीन्स अ फ्रेज और एक्सप्रेशन इन विच द सेम थिंग इज सेड ट्वाइस इन डिफरेंट वर्ड्स. टॉटोलॉजी एक फ्रेज है या एक्सप्रेशन है जिनमें क्या करते हैं, सेम थिंग कही जाती है ट्वाइस, दो बार, इन डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्दों को यूज करके सेम थिंग बोल रहे हैं. दैट इज नोन एज टॉटोलॉजी. सो द ऑप्शंस आर, अनदर नेम फॉर टॉटोलॉजी इज प्लेनोज्म, पन, रिटोरिक और प्रोस्टी. सो द करेक्ट आंसर विल बी प्लेनोज्म. Pleonasm is also known as tautology. What is tautology? Tautology is a phrase or expression in which the same thing is said twice in different words. Now look at the another question. A lyric is descending order of the series of idea in the description of. अब देखिए क्या है, series of idea है but in descending order, not in ascending order. तो अभी हमने आपको बताया था कि क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स की डेफिनेशंस के बारे में. क्लाइमेक्स में क्या है, सीरीज ऑफ आइडिया होता है अकॉर्डिंग टू इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस के आधार पे इन असेंडिंग ऑर्डर में होता है. और इन एंटी क्लाइमेक्स में क्या है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सीरीज ऑफ आइडियाज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, एंटी क्लाइमेक्स. गॉट इट? नाउ लुक एट द अनदर वन. Climax is the series of idea in the
ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, यू नो इट वेरी वेल। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लाइमेक्स में क्या है, इम्पोर्टेंस के आधार पे कैसा है सीरीज ऑफ आइडिया, असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है? सो द करेक्ट आंसर विल बी इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटी क्लाइमेक्स। बट हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेक्स क्या होगा, इन असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। नाउ लुक एट द अनदर वन। Yes. 20th question is circumlocution is also known as. Circumlocution is also known as. सबसे पहले जानेंगे कि ये circumlocution है क्या. So it is a long, complicated, indirect way of speaking or writing. लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड है एंड इनडायरेक्ट है, वे ऑफ स्पीकिंग है या राइटिंग। हमारा बोलने का या लिखने का एक तरीका है जो क्या है, लॉन्ग है, कॉम्प्लिकेटेड है और इनडायरेक्ट है। दैट इज नोन एज सर्कम्युलेशन। सर्कम्युलेशन इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शंस आर फर्स्ट वन इंटैरोगेटिव, एलिट्रेशन, पन और पैराफ्रेसिस. So the correct answer will be D. Now look at the another one. I must be taught my duty and by you. Figure of speech is, आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ऑप्शंस आर फर्स्ट वन पन, लिटोटस, एलिट्रेशन और आयरनी. करेक्ट आंसर विल बी, अब देखिए व्हाट इज आयरनी. आयरनी क्या है? आयरनी है, आयरनी इज द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस. जो अपीयरेंस और रियलिटी में डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज आयरनी. आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी. सो द आंसर ऑफ 21st इज आयरनी. व्हाट इज आयरनी? आयरनी क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस. Now look at the 22nd questions. Yes. To gossip is a fault, to libel a crime, to slander a sin. The figure is, the options are first one climax, second pun, anti-climax और irony. देखिए क्लाइमेक्स में हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़ इन असेंडिंग ऑर्डर. देखिए टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लाइबल इज अ क्राइम. फॉल्ट, क्राइम, स्लैंडर, सिन, ये आपको क्या है, एक असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है. फर्स्ट वन फॉल्ट, देन क्राइम, उसका अप स्टेज स्लैंडर एंड द मोस्ट अप स्टेज इज सिन. सो द आंसर विल बी क्लाइमेक्स. नाउ लुक एट द अनदर वन, 23rd. आई हेयर द वाटर लैपिंग ऑन द क्रैग. द फिगर इज, अब देखिए बहुत ध्यान से आपको अपने क्वेश्चन को रीड करना होगा. आई हेयर द वाटर लैपिंग. वॉट इज लैपिंग? लैपिंग इज द साउंड ऑफ वाटर. ठीक है, पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि वाटर का साउंड क्या है, लैपिंग. साउंड से रिलेट कर रहा है तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज? यस, आंसर विल बी डी, ओनोमोटोपोइया. बिकॉज इन ओनोमोटोपोइया वी फाइंड साउंड रिलेटेड वर्ड्स लाइक चिरपिंग, बर्ड साउंड. Here is lapping, the sound of water. Now look at the another one, 24th. Yours is only a lame excuse. The figure is. Options are metaphor, simile, apostrophe, and the fourth option is, yes, fourth option is pun. Okay. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो एक्सक्यूज है उसको कंपेयर कर रहे हैं बट कंपेयरिंग वर्ड नहीं यूज है हमारा. लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक, सो एंड एज. ठीक है, योर यानी कि तुम्हारे झूठ, तुम्हारा झूठ कैसा है, इज लाइक अ लेम एक्सक्यूज. बट लाइक जो है वो मिसिंग है यहाँ पे. देन विल गो विद द ऑप्शन ए, मेटाफर, कंपेरिजन बिटवीन टू अनइवन थिंग्स.
Now look at the another one. But patience to prevent that murmur soon replies. But patience to prevent that murmur soon replies. अब देखिए the options are first one personification, second pun, third apostrophe and fourth none of these. अब यहाँ पे क्या देखिए personified किया जा रहा है किसको, patience को. Here patience is personified as someone who can talk sense into the speaker. पेशेंस को पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, देन द आंसर विल बी येस एग्जैक्टली पर्सोनिफिकेशन. बिकॉज पेशेंस क्या है, पेशेंस एक एक्सट्रैक्ट आइडिया है. इट्स अ काइंड ऑफ आइडिया. इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाइड करते हैं, कंसिडर करते हैं एज लिविंग थिंग. So the answer will be personification. Now look at the another one. There rolls the sea, where grows the tree. O earth, what changes has thou seen? अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, अर्थ को एड्रेस कर रहे हैं. जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो हमारे पास कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है. ऑप्शंस आर एपोस्ट्रोफी, सेकंड पन, थर्ड पर्सोनिफिकेशन एंड फोर्थ इज लिटोटस. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एपोस्ट्रोफी. ठीक है, अर्थ को एड्रेस कर रहे हैं, सो द आंसर विल बी ए, एपोस्ट्रोफी. नाउ लुक एट द अनदर वन. अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन अ विटी टर्न. यहाँ पे आप लिखिए मिस्टेक है टाइपिंग का, यहाँ पे राइट कर लेंगे वेटी टर्न ऑफ थॉट. टर्न ऑफ थॉट. तो ये डेफिनेशन किसकी है, अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन अ वेटी टर्न ऑफ थॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ऑप्शंस. फर्स्ट वन सेइंग वाइज, सेकंड इज proverb and fourth is none of these and third one is epigram. So the correct answer will be C, epigram. The definition of epigram is a brief saying that ends in a witty turn of thought. Correct answer is epigram. Now look at the another one. डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट. अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया डेफिनेशन ऑफ आयरनी. आयरनी क्या है, आयरनी क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस, और वी कैन से दैट डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस क्रिएट्स आयरनी. जो वास्तविकता होती है और जो अपीयरेंस है, जैसा प्रतीत होता है, उन दोनों में जो डिफरेंस है दैट क्रिएट्स आयरनी एंड इट इज कॉमन यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच. नाउ लुक एट द अनदर वन, 29th. इन विच फिगर अ पार्ट इज यूज्ड टू शो द होल और द होल टू अ पार्ट. फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे चेयरमैन को एड्रेस करना है तो सेंटेंस में चेयर वर्ड यूज़ करें. डेडिकेट टू द चेयर मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर चेयरमैन को एड्रेस कर रहे हैं. तो ये डेफिनेशन हमारी किसकी है, द ऑप्शंस आर लिटोटस, सेकेंड है सिंटोचिक, थर्ड है प्रोस्डी एंड फोर्थ इज आयरनी. सो द करेक्ट आंसर विल बी सिंटोचे. So doce is a figure of speech in which a part is used to show the whole or the whole to a part. Correct answer is syndoche. Now look at the another one. In which figure a negative expression is used for a strong affirmation. ये किसकी definition है? In which figure a negative expression is used for a strong affirmation. Options are syndoche, pun, irony or litotes. So the correct answer will be litotes. What is litotes? अब देखिए इसको समझते हैं. पहले नोट डाउन कर लीजिए आप साइड में डेफिनेशन इसकी. By litotes which an affirmation is made indirectly by denying its opposite.
Usually rich and poor became equal in depth. Got it? By litotes, which an affirmation is made indirectly by denying its opposite, usually rich and poor, usually with an effect of understatement. Note down the definition of litotes: by which an affirmation is made indirectly by denying its opposites, usually with an effect of understatements. Means the meaning of litotes is the use of negative और weak statement. नेगेटिव और वीक स्टेटमेंट को यूज करके एम्फेसाइज करना टू अ पॉजिटिव मीनिंग, पॉजिटिव मीनिंग को ज़्यादा एम्फेसाइज करना. फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू ग्लासेस डोंट लुक बैड. जो मेरे न्यू ग्लासेस है वो क्या है, बैड नहीं लगते हैं. इट मीन्स इट सीम्स गुड. यहाँ पे अपोजिट को डिनाई कर रहे हैं, एक्चुअल मीनिंग को एक्सपोज करने के लिए, उसको अंडरस्टूड कराने के लिए. So the correct answer will be D, litotes. Now look at the another one. Authority forgets a dying king. The figure is authority forgets करके. ये authority क्या है, एक abstract idea है. forget करने वाला जो work है कर रही है, ये done किया जाता है by living one. but यहाँ पे क्या non living thing ये prove कर रहे हैं. so the answer will be, look at the first options. A, personification, B, metaphor, C, litotes, and third is pun. So the correct answer will be personification. Okay, now look at the another one. The question is, the Puritan had been rescued by no common deliverer from the grasp of no common foe. The figure is, now look at the options, litotes, pun, personification, and none of these. So the correct answer will be, yes, the correct answer will be litotes. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निगेटिव टर्म का यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म को एम्फेसाइज करने के लिए, अंडरस्टूड कराने के लिए. द प्यूरिटन हैड बीन रेस्क्यूड बाय नो कॉमन डिलीवरर फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ नो कॉमन फो. ओके, द मीनिंग ऑफ लिटोटस इज द यूज ऑफ निगेटिव और वीक स्टेटमेंट टू एम्फेसाइज अ पॉजिटिव मीनिंग. आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिल गया अच्छा सा. नाउ लुक एट द अनदर वन. He got a golden opportunity to pass the examination. He got a golden opportunity to pass the examination. The figure is metaphor, simile, pun, oxymoron. अब देखिए अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी उसे मिली है उसको कंपेयर कर रहे हैं विद गोल्डन अपॉर्चुनिटी से एग्ज़ाम पास करने के लिए. बट कंपेयरिंग वर्ड इज़ नॉट यूज, सो वी विल गो द ऑप्शन विद मेटाफर. अगर यहाँ पे कंपेयरिंग वर्ड यूज़ करते फॉर एग्जांपल लाइक, सो एज, सो आर आंसर विल बी सिमली, बट यूज़ नहीं किया है, देन वी विल गो विद ए, मेटाफर. नाउ लुक एट द अनदर वन. 10,000 saw I at a glance. बहुत ही पॉपुलर लाइन्स है ये. द फिगर इज, आपको बताना है कौन सा फिगर इसमें यूज़ किया गया है. 10,000 saw I at a glance में एक झलक में बता रहे हैं कि 10,000 टाइम्स या 10,000 उन्होंने देखा. अब ओवर स्टेटमेंट है, सो यू कैन इजली फाइंड आउट द ऑप्शन. Correct option is yes, hyperbole. Got it? 10,000 I saw at a glance. For example, जैसे कि हम कहते हैं I told you 100 times. I saw him 1,000 times. These are the examples of hyperbole. Next is, he looks smart though he is at the sunset of his life.
ही लुक्स स्मार्ट। अब देखिए दो अनइवन थिंग्स हैं। ही लुक्स स्मार्ट दो ही इज एट द सनसेट ऑफ हिज लाइफ। द फिगर इज, लुक एट द ऑप्शंस, सिंगडोचे, सिमली, हाइपरबोल और मेटाफर। करेक्ट आंसर विल बी मेटाफर, not simile. Now look at the another one. Sheds tears of joy at his son's brilliant success. Underline it. Sheds tears of joy at his son's brilliant success. The figure of speech is. Now look at the options: oxymoron, pun, anticlimax and simile. The correct answer will be A, oxymoron, because here the two opposite ideas or two opposite words put together. Tears भी हैं, joy भी हैं, tears of joy. Got it? Oxymoron. अगर ऑक्सीमोरन आपको यहाँ पर नहीं दिया गया होता, उसके जगह पे एंटीथीसिस होता, देन वी विल गो विद द ऑप्शन एंटीथीसिस इन प्लेस ऑफ ऑक्सीमोरन. Now look at the another one. Mercy blessed him that gives and him that takes. मर्सी क्या करती है? ब्लेस करती है उसको भी जो रिसीव करता है, एंड गिवर और रिसीवर बोथ, टू बोथ गिवर एंड रिसीवर. दिस पर्टिकुलर फेमस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द येस मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर. So the look at the options now. First one is personification, second apostrophe, third simile, and fourth is singdoce. So the correct answer will be A. That is, what is the first? Yes, that is personification. मर्सी क्या कर रही है? मर्सी को यहाँ पे personified किया गया है. मर्सी ब्लेस करने का काम कर रही है, जो कि किसके द्वारा डन होता है? By living things, by human being also. बट मर्सी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है हमारा, उसको यहाँ पे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है. सो वी कैन इजली गो विद द करेक्ट आंसर, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ लुक एट द अनदर वन. लोनलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर. लोनलीनेस क्या है? यंग एम्बिशंस लैडर है, सीढ़ी है लोनलीनेस. इट इज ट्रू एक्चुअली. अब देखिए, loneliness is young ambitions ladder means that humbleness is like the ladder, but the comparison is made without using like or as. So we will go with the option A, metaphor. Correct answer will be metaphor. Loneliness is young ambitions ladder means that humbleness is like the ladder, but the comparison is made without using like or as. So the correct answer will be metaphor A. Now look at the next one. Chatter, chatter as I flow to join the brimming river. Here the figure is, अब देखिए chatter, chatter. What is chatter, chatter? Chatter, chatter क्या है? साउंड है. यहाँ पे हम साउंड की, अगेन साउंड की बात कर रहे हैं. So the our first priority और फर्स्ट करेक्ट आंसर विल बी ओनोमोटोपोइया. बाकी ऑप्शंस को देखे बिना ही हम लगा सकते हैं कि हाँ करेक्ट आंसर विल बी ओनोमोटोपोइया, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट द साउंड्स रिलेटेड वर्ड्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए. नाउ लुक एट द अनदर वन. Exult, O shores, and ring, O bells. Here is the figure. अब देखिए यहाँ पे अगेन क्या कर रहे हैं हम? एड्रेस कर रहे हैं ना, शोर्स को, बेल्स को. सो द वी विल गो विद द करेक्ट आंसर एपोस्ट्रोफी. सिमली भी नहीं कर सकते हैं. अब देखिए ऑप्शंस को क्या है, एलिमिनेट करना भी सीखना चाहिए. कभी कभी आपको करेक्ट आंसर नहीं मालूम होता है, बट जो ट्रिक है कि एलिमिनेटिंग द अदर वंस, आप करेक्ट आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं. सिमली की क्या डेफिनेशन है? कंपैरिजन है एंड कंपेयरिंग वर्ड यूज हैं. सो सिमली नहीं हो सकता यहाँ पे. पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे किसी को पर्सोनिफाइड नहीं किया जा रहा है.
एंड मेटाफर अगेन कंपैरिजन नहीं है बिटवीन टू थिंग्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी एपोस्ट्रोफी, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एड्रेस कर रहे हैं हम. नाउ लुक एट द अनदर वन. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस. द फिगर ऑफ स्पीच इज. अब देखिए पहले इसका आप मीनिंग समझ लीजिए 40th वाला का, कि यहाँ पे पोइट क्या कहना चाह रहा है. एग्जस्ट ओ शोर्स एंड ड्रिंक्स ओ बेल्स. हियर द पोइट एड्रेसेस द पीपल स्टैंडिंग ऑन द बैंक. शोर्स मीन्स क्या होता है कि बैंक के लिए बोलते हैं, बट वहाँ पे बैंक को नहीं एड्रेस कर रहा है, बैंक में जो पीपल खड़े हुए हैं, स्टैंडिंग हैं, उनको एड्रेस कर रहा है. ही एडवाइजेस देम टू बी हैप्पी एंड मेक मैरी. He allows them to ring the bells of the church. The meaning of particular quote is, here the poet addresses the people standing on the bank. He advises them to be happy and make merry. He also allows them to ring the bells of the church. अब एड्रेस कर रहे हैं किसको, टू द पीपल दैट आर स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी अपोस्ट्रोफी. नाउ लुक एट द अनदर वन. जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस. द फिगर ऑफ स्पीच इज. द ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज सिंडोक्चे, सेकेंड लेटोटस, थर्ड पन एंड फोर्थ इज बेथोस. सो वी विल गो विद द ऑप्शन ए, सिंडोचे. Correct? Yes. Now let's see the another one. It is a wise father that knows his own child. ठीक है, बुद्धिमान फादर वही है जो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानता है. अब ये वाइज सेइंग है. वाइज सेइंग हम किस में फाइंड करते हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस. द फिगर इज, options are, first one is epigram, simile, pun, none of these. Wise saying turns witty turns on thought. किसका डेफिनेशन आपने अभी कुछ देर पहले रीड किया था? Wise saying that turns in a witty turn of thought. Yes, the correct answer is एपिग्राम. एपिग्राम की डेफिनेशन में आपने रीड किया था अभी. नाउ लेट्स सी द अनदर 43rd. कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, वोलेड एंड थंडर्ड. हियर द फिगर इज. अब देखिए आप फाइंड करिए. थंडर साउंड बता रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, थंडर इज द साउंड ऑफ. यस, जहाँ पर हम साउंड रिलेटेड वर्ड्स की बात करते हैं, सो वी कैन इजली गो विद द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनोमोटोपोइया. ओनोमोटोपोइया में साउंड रिलेटेड वर्ड्स का जिक्र करते हैं. अभी पर्टिकुलर जो सीरीज है ये क्वेश्चन वाली सेट, इसमें आपने बहुत सारे देखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल वाटर लैपिंग, chatter, thundered also. Okay, so the correct answer will be onomatopoeia. Now look at the another one. So spake the sharp Abdul, faithful found among the faithless, faithful only he. Here the figure is. अब आप बहुत ध्यान से देखिए इसको. सेकेंड लाइन में आपको टू अपोजिट वर्ड्स मिल रहे हैं जो साथ में दिए गए हैं. फाइंड कीजिए. यस, फेथलेस एंड फेथफुल. फेथलेस एंड फेथफुल. अब कौन से फिगर ऐसा है जिसकी डेफिनेशन में बताया गया है कि टू अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स पुट टुगेदर. अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ऑक्सीमोरन का, तो हम लोग इजली ऑक्सीमोरन के साथ जाते हैं. बट ऑक्सीमोरन नहीं है तो उसका मैंने सब्स्टिट्यूट आपको बताया है कि उसका सेम क्या है, अनदर वर्ड ऑफ एंटीथेसिस. ठीक है, अनदर वर्ड ऑफ एंटीथेसिस इज ऑक्सीमोरन. सो ऑक्सीमोरन मिसिंग है.
We can easily find antithesis, so we will go with the correct answer, antithesis, because two opposite ideas or words are put together. आप इजली देख सकते हैं फेथलेस एंड फेथफुल. Now look at the 45th question. The naked every day he clad when he put on his clothes. Here the figure is, देखिए wise saying है. पहले तो जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है. This particular famous quote given by Oliver Goldsmith. किसके द्वारा दिया गया है? आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए. गिवन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. चलिए जान लेते हैं कि मीनिंग क्या है पर्टिकुलर कोटो का. द naked every day he clad when he put on his clothes means when lovely woman stoops to folly and finds too late that men betray. What charm can soothe her melancholy? What art can wash her guilt away? Got it? The correct answer will be, फटाफट बताइए. Correct answer will be yes, pun. Correct answer will be pun. Wise saying है, फिर भी क्या है, आप जब उसको रीड करेंगे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा मीनिंग में पहुंचने के लिए, बट बहुत मीनिंगफुल होते हैं. पन के जो भी एग्जांपल्स होते हैं बहुत मीनिंगफुल होते हैं. फॉर एग्जांपल आप दे सकते हैं, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन. नाउ लुक एट द अनदर वन, 46. नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच. आगे क्वेश्चन देखेंगे इधर. So much wisdom, wisdom is humble that it knows no more. Here the figure is, read again. Knowledge is proud that it knows so much, and wisdom is humble that it knows no more. Here the figure is, options are first one oxymoron, second simile, third litotus and fourth is personification. अब देखिए यहाँ पे नॉलेज को भी पर्सोनिफाइड किया जा रहा है और विजडम को भी पर्सोनिफाइड किया जा रहा है. सो द करेक्ट आंसर विल बी पर्सोनिफिकेशन. नाउ लुक एट द अनदर वन, 47th क्वेश्चन. द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट. बेस्ट वे क्या है किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए? उसको बोलना, उसको यूज़ करना. द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज टू स्पीक इट. अब देखिए सबसे पहले हम लर्न करेंगे फिर उसको स्पीक करेंगे. अब यहाँ जो ये आपका आइडिया है ये इन असेंडिंग ऑर्डर में सेट किए गए हैं. So the correct answer will be climax. The series of idea in ascending order according to importance of their importance. Now look at the another one. For scepter and crown must tumble down, and in the dust dust be equal made with the poor crooked scythe and spade. In these lines the figure of speech is. अब देखिए पहले तो जान लेते हैं कि what is the meaning of particular these lines. Here the poet or author refers to the explanation of metonymy. In the previous answer, scepter and crown are a king's accessories. ठीक है, जो क्राउन होता है, स्कैप्टर होता है, वो किसका एक्सेसरीज है? किससे रिलेट कर रहा है? किंग से रिलेट कर रहे हैं. एंड स्पेड किससे रिलेट कर रहा है? स्पेड इज द एक्सेसरीज ऑफ पुअर फार्मर्स. सो द एक्सेसरीज सब्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट इन द गिवन लाइन्स ऑफ वर्ड्स दैट convey the poet's idea that rich and poor become
equal in death. Here the poet defines that, or explains that scepter and crown are a king's accessories. Spade is the accessories of poor farmers. The accessories substitute the subject in the given lines of verse that convey the poet's idea that rich and poor become equal in death. So the correct answer will be metonymy. Correct option is A. Now look at the next question. The soldiers fights for glory and a shilling day. Here the figure is, options are anticlimax, metonymy, climax, synecdoche. Okay, the correct answer will be D, synecdoche. The soldiers fights for glory and a shilling day. Now look at the next question. He was a learned man among lords and a lord among learned man. The figure is, options are metonymy, synecdoche, anticlimax and epigram. Correct answer will be yes. Correct answer is D, epigram. Epigram is the correct answer for the particular given lines. He was learned man among lords and lord among learned men. The correct figure is epigram. All the questions of this series are very important. See you soon with important topic according to your syllabus. Subscribe our channel for another useful content. Thank you for watching it. Have a good day.